Welcome back with the previous year question paper. Now we are here with 2018 questions. हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक हमने 2013, 14, 15, 16 और 17 कर चुके हैं. जिन लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं प्लीज पिछली वीडियोस को देखें और उनको रिवाइज करें. शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड अवेल द फोर्थ कमिंग डिस्काउंट फॉर यू. फॉर वी आर लॉन्चिंग 2025 जो है बैच जो है एक्सक्लूसिव बैच जो है हम लॉन्च करने वाले हैं. यू विल गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट इफ यू यूज दिस कोड दैट इज KASH. Okay, now see the question number 82. He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, Shri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to Central Assembly. इनमें से कौन सा आदमी है जिन्होंने इन सब लोगों की आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी लिखी, मेजनी की, गारबेल्डी की, शिवाजी की, श्री कृष्ण की? ये कौन सा आदमी था और बाद में सेंट्रल असेंबली में भी चुना गया? ही वॉज नन अदर देन पंजाब केसरी लाला लाजपत राय. So Lala Lajpat Rai, often known as Sher Punjab, Punjab Kesari, had multifaceted role in India's freedom struggle. He was instrumental in establishing Punjab National Bank. पंजाब नेशनल बैंक भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया. लाला जी जो है आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे, एंग्लो वैदिक कॉलेज से भी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के सेशन में भी पार्टिसिपेट किया, प्रेसिडेंट भी बने, रेडिकल अप्रोच रखी स्वराज को, स्वराज पार्टी के भी पार्ट थे. एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट जो है ही गॉट इंजर्ड एंड ही डाइड. ओके, क्वेश्चन नंबर 83 दैट इज आर्ट एंड कल्चर का है. दैट इज द चापचर कुत फेस्टिवल, दैट इज कुंगजाउन परबा बल्लाद फेस्टिवल, बैलेड फेस्टिवल, दैट इज थांगता डांस फेस्टिवल. नाउ सी द एंड मैच द करेक्ट. इनमें से करेक्टली कौन सा मैच है? दिस फेस्टिवल इज करेक्ट, दिस फेस्टिवल इज करेक्ट. Thangta dance festival, it is not with related to Sikkim. I suppose 1 and 2 is the correct answer if I am not wrong. Okay, this is a festival of that is Mizoram. ये मिजोरम का फेस्टिवल है. This festival is Manipur. और ये जो दांग टांग फेस्टिवल है ये भी मणिपुर का है, ये मिजोरम का नहीं है. मार्शल आर्ट है ये. द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज किशनगढ़ स्टाइल. ठीक है, किशनगढ़ स्टाइल की फेस्टिवल आल्सो नोन एज मोनालिसा पेंटिंग. ठीक है, नगारी दास. ओके, नाउ सी किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग फेमसली एसोसिएटेड विद आर्टिस्ट निहाल चंद, रेफर्ड एज अ मोनालिसा ऑफ इंडिया. Legend has it that Bani Thani, portrayed as Radha, was a beloved of Maharaja Savant Singh, that is also known as Nagari Das, and it was the courtier painter Nihal Chand जिसने ये पेंटिंग बनाई थी. Recognizing its cultural significance, Government of India honored Bani Thani. इसके नाम पे जो है एक स्टैम्प भी इशू की गई थी 1973 में. With reference to the cultural history of India, consider the following statement. Most of the Tyagaraja Kritis are devotional songs in praise of Lord Krishna. He was a great composer of Carnatic music. Tyagaraja created several new rags. देखिए, Anamcharya and Tyagaraja were the contemporaries. Anamcharya kirtans are the devotional songs in the praise of Lord Venkateshwar. Okay, Lord Venkateshwar. Okay, so this statement is correct and this statement is wrong, and this I think 2 and 4 are correct. So let us see. So while it is true that Tyagaraja composition predominant care consists of devotional songs dedicated to Lord Ram, the assertion that most of his work are not devotional is incorrect. ठीक है, Tyagaraja is renowned for his extensive repertoire for devotional composition, which number in the 1,000. These compositions not only praise Lord Ram but also contributed to the creation of numerous rags. Numerous नए राग भी स्टार्ट किए. Together with Muthu Swami and Swami Shastri, Tyagaraja forms the celebrated trinity of the Carnatic music, emphasizing the accuracy of statement 2. That is Talpaka Annamacharya, the revered Hindu saint from the 15th century, particularly associated with Lord Venkateshwar. He is credited with composing Sankirtan song of praise, making him the earliest known Indian musician to do so. Annamacharya Kirtan composition continue to be popular in Carnatic music tradition. तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का, खास करके म्यूजिक का. After the Santhal uprising subsided, what were the measures taken by the colonial government? colonial government ने संथल अपराइजिंग के बाद कौन से मेजर लिए? ऑफ कोर्स संथल परगना बना दिया था.
it became illegal for Santhal to transfer land to the non-Santhal. Both statements are correct. दोनों स्टेटमेंट जो है संथल अपराइजिंग हुई थी. संथल अपराइजिंग कब हुई थी? संथल अपराइजिंग जो है दैट वाज 1885-86 में हुई थी. सिद्धू एंड कानू दो इसके प्रोमिनेंट लीडर थे. बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल्स हु वेंचर्ड इनटू दिस ट्राइबल टेरिटरीज वर लेबल्ड एज दिकू, इनको मनाही की गई, ये संथल एरिया में लैंड नहीं ले सकते. इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन द इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century वाज, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल क्या रहा? दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ओके, कमर्शलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर का ये रहा आपका सबसे बड़ा इंपैक्ट. अदरवाइज ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम बात करें, दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरलाइजेशन, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम डिसरप्ट हो गया, नए स्ट्रक्चर आ गया, एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ. ओके, the staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of 18th century, मतलब 1750 के बाद कौन कौन सी चीजों का जो है एक्सपोर्ट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां से किया, दैट इज कॉटन का किया, सिल्क का किया, साल्ट पेट्री का किया एंड ओपियम किया. देयर इज नो डाउट. ठीक है, इन चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता था. ओके, क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? 1917 में स्टार्ट हुआ. क्यों हुआ? दैट वाज कल्टीवेशन किसकी कर रहे थे? चंपारण सत्याग्रह में इंडिगो की कल्टीवेशन जबरदस्ती करवा रहे थे. तीन कातिया सिस्टम जो है इट वाज वेरी मच प्रोमिनेंट. ओके, सो तो यहां पे क्या हुआ? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? इट वाज द जॉइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट. इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन गया और गांधी जो है गांधी जी की सबसे पहली जो है एसोसिएशन चंपारण में ही थी. ओके, 1917 में. ठीक है, अपॉन लर्निंग द फार्मर्स प्लाइट एट चंपारण, गांधी जी लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूरोपियन इंडिगो ग्रोव्स इन द रीजन. अंडर हिज लीडरशिप द फार्मर्स इनिशिएटेड नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तीन कातिया सिस्टम था. गांधी जी को ले कौन गया था? राजकुमार शुक्ला. ठीक है, और बाद में जो है सिस्टम वाज सेटअप. तीन कातिया सिस्टम जो है इट वाज अबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा इन 1948 में? हिंद मजदूर सभा के फाउंडर कौन थे? तो हिंद मजदूर सभा के फाउंडर जो हैं ये तो नहीं थे, ये भी नहीं थे, रामास्वामी ये भी नहीं था. ये वर द मेंबर थे आपका अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम एंड जी मेहता. ओके, they were the people. Okay, they were the people who were associated with 1948 किसान हिंद मजदूर सभा. Okay, they were very popular with reference to the religious practices in India. That is Sthanakvasi sect belong to Sthanakvasi sect belong to with reference to the religious practices in India. Sthanakvasi sect belong to किसके साथ बिलोंग करता है? जैनिज्म के साथ बिलोंग करता है. जैनिज्म दैट इज श्वेतांबर. श्वेतांबर सेक्ट कंप्राइजिंग सब सेक्ट्स लाइक पुजेरा, देरावसी, दुधिया, दैट इज तारनकवसी अमंग अदर सेक्ट्स. दे आर डेयर टू द बिलीव इन अगम. मालीनाथ जो है, दे एक्टेड मालीनाथ जो है इट इज अ फीमेल तीर्थंकर मानते हैं श्वेतांबर से इसको. ओके, इसको मालीनाथ को फीमेल तीर्थंकर माना जाता है. ओके, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. White marble was used in making Buland Darwaza and Khanka at Fatehpur Sikri. Red sandstone and marble were used in making Bara, Imam Bara and Rumi Darwaza at Lucknow. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये रॉन्ग हैं. यहाँ पे वाइट मार्बल जो है वो नहीं यूज किया गया है, यहाँ पे दूसरा मटेरियल यूज किया गया है. ठीक है, 1869 में अकबर एस्टैब्लिश सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी. ओके, मेकिंग द कैपिटल बनाई. अकबर कंस्ट्रक्टेड बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई. ठीक है, इंक्लूडिंग खास पैलेस, जोधाबाई पैलेस, तुर्की सुल्ताना, पंचमहल, मरियम पैलेस, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती, खानगा. दी स्ट्रक्चर्स प्रीडोमिनेटली रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं, मार्बल से नहीं बने हुए हैं. बुलंद दरवाजा द गेट ऑफ विक्ट्री इरेक्टेड इन गेटवे ऑफ विक्ट्री गेट ऑफ विक्ट्री. ये गुजरात कॉन्क्वेस्ट के बाद किया गया था. कंस्ट्रक्टेड इन 75. इबादत खाना सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डिस्कशन.
सो डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, ठीक है। Which of the following foreign travelers discuss elaborately about the diamonds and the diamond mines of India? इनमें से कौन सा आदमी था जिसने डायमंड माइंस का बड़े खूबी से और बड़ा इलेबोरेटरी तरीके से जो है वो मेंशन किया? He was a tavernier, that is again the objective from NCERT, ठीक है। Tavernier, French traveler who lived from 1638 to 1663, made 6 voyages to India. During his travels, he visited Surat, Agra, Burhanpur, Dhaka, Golconda. He was basically क्या था? He was a jeweler by profession. Okay, तो डिटेल डायमंड्स की जो है वो इसी ने किया। ये he also published a book Travel in India. औरंगजेब के टाइम पीरियड में आया था, शाहजहां के टाइम पीरियड में भी आया था। With reference to Indian history, who among following is a future Buddha yet to come to save the world? फ्यूचर बुद्धा कौन होगा? सो फ्यूचर बुद्धा जैसे कल की अवतार है, फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय को बोला गया है कि भाई ये आएगा। ये किसने बोला है? ये महायाना बुद्धिज्म ने बोला गया है। ओके, कि महायाना बुद्धिज्म में बोला गया है कि फ्यूचर मैत्रेय बुद्धा आएगा, फ्यूचर बोधिसत्व आएगा, अर्थ में अचीव एनलाइटनमेंट एंड प्रोपगेट धर्म लाइक साक्यमुनि बुद्धा's टीचिंग। ओके, बाकियों का मेंशन नहीं किया गया है। Which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? लॉर्ड वेल्सले ने जो सब्सिडरी अलायंस किया था, ये कौन सी चीज अप्लाई नहीं होती है? टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी, टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, ये तो बहुत प्रोमिनेंट था। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम द नेपोलियनिक डेंजर, इट वाज आल्सो देयर टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम ऑफ द कंपनी, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। आई सपोज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द थर्ड स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इनकम नहीं करनी है, आर्मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अपनी मोनोपोली जो है वो इस्टेब्लिश करनी है। जो सब्सिडरी अलायंसमेंट का सिस्टम जो था, इसमें सबसे पहली स्टेट जो इसने ज्वाइन किया था 1799 में किया था बेसिकली, इट वाज निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना। और बड़े सारे लोगों ने भी बाद में ज्वाइन करते गए, जो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इंग्लिश एजुकेशन जो है सबसे पहले कहाँ पे, किस एक्ट के द्वारा की गई थी? चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया सैंक्शन किया गया था। इसमें इंस्ट्रक्शन की बात की गई, इसमें 35 में एंग्लो ओरिएंटलिस्ट। एवरी स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन इन इंडिया। तीनों स्टेटमेंट जो है एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। ओके, तीनों स्टेटमेंट्स। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा? स्वराज्य सभा, किसने नाम अपना स्वराज्य सभा जो है वो चेंज किया? दैट इज ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट, जो 1916 में स्टार्ट हुई थी, और करते करते इट मेट इट्स नेचुरल डेथ, लेकिन बाद में नाम चेंज किया गया था। सो इट इज वेरी कॉमन ऑब्जेक्टिव अगेन एनसीईआरटी। तो ऑल इंडिया होम रूल जो है, होम रूल कब स्टार्ट की गई थी? 1916 में स्टार्ट की गई थी, तिलक ने स्टार्ट की थी। एनी बेसेंट का आइडिया था, आयरलैंड से ली गई थी, दोनों ने इकट्ठे इसलिए नहीं स्टार्ट की, दे हैड अ डिफरेंसेस ऑफ देयर स्कॉलर्स, अपने इनके स्कॉलर्स में क्या था, डिफरेंसेस था, जिसकी वजह से इन्होंने इकट्ठे मूवमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं की। Which among the following events happened earliest? इसमें सबसे पहला कौन सा हुआ? आर्य समाज 1875 में। दीन बंधु, नील मित्र, आई डोंट नो, लेट अस स्टार्ट। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आई सपोज 80s में लिखा गया। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1861 में जो है ही बिकेम द, यू कैन से दैट ICS, पहला ICS ये 1861 में बना था। तो आई थिंक दीन बंधु मित्र ने जो है वो पहले लिखा था। लेट अस सी इसका आंसर क्या है। बी, नील बंधु दर्प, नील बंधु मित्र 58 में लिखा गया। ओके, आर्य समाज 77 में, 75 में बनाया गया, ये 82 में हुआ। एंड ऑफ कोर्स सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है इसने 1864 में किया था, ठीक है, मैंने 61 लिखा हुआ है, ये 1858-59 में है। ओके, with reference to the educational institution during the colonial rule in India, consider the following pairs: Sanskrit College at Banaras, Calcutta Madrasa, Fort William College, Fort William College. Okay, so संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने नहीं बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेल्सले ने नहीं बना था, लॉर्ड वेल्सले के टाइम पीरियड में हुआ था। The only correct answer is B, that is Warren Hastings. Sorry, B is the correct answer. Let us see, इसको देखते हैं।
ओके, वैरन हेस्टिंग जोनाथन डंकन ने बनाया था ये. इट वॉज बाय जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन. ओके. कलकत्ता मदरसा किसके? कलकत्ता मदरसा, William Jones Calcutta Madrasa, that was established by Warren Hastings. It was established by Warren Hastings. Warren Hastings, Calcutta Madrasa. This is by, that is Lord Wellesley. Okay. So with this we finished. That is 2018. We'll do up to 2023, I suppose. 2023 तक हम करेंगे. प्लीज शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स एंड रेगुलरली इसको जो है वो रिवाइज किया जाए. एंड ऑफ कोर्स इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू. यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स 2025 एंड अवेल अ हैवी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. थैंक यू.